السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں یور میجسٹی کوئین الزبتھ. ہائے کیا ہوا اماں جی؟ پتر سلام لئیے اوتریا نال میرا بھی ترا کٹ چھڑی اے منڈے تھو ہی لئے نے. اچھا یہاں سے لیے نیو باؤ بینڈ آلیاں گولوں میں انہا خرچہ نہیں کراؤں دی اپنی گورنمنٹ دا. اچھا اچھا ایتھے آئیاں تے آندے لگے تُسی اپنے گارڈ گوڈ نہیں لیندے کوئی. اچھا میں کہا نہیں ایتھے میں تے نہیں انہیں پہے لاندی اپنے تے. ہاں جلے پھر ایتھو ہی تانو دے دینے گارڈ. تے اتھو میں لنگن دئی چاہاں گڈی تے منو نظر آئے ہوتے واجے پھاڑ کے کھلوتے. نہیں، لیکن جو آپ کے بکنگم پیلس کے باہر کھڑے ہوتے ہیں وہ تو بڑے خوبصورت، سمارٹ، اونچے، لمبے، تنومند قسم کے. تو بالکل بیچارے یہ دیکھیں نہیں ٹھیک نے سستے لب گئے نے. 7,000 دی جوڑی لئی پہلے تھے آئی 7,000 مانگ دے سانے دا. میں کہا نہیں دو کھڑنے نے آندے نے چلو پھر اینو چونگے چلے جاؤ. ہے چنگے نے ہونج ایک کوئی فالٹے بس کوئی بھی جیب چاتھ پاندہ تے فوراں شروع ہو جاندے نے. بے ساندہ راجہ میرے بابو بابا انگڑی دے دل دا سہارا نیوی میرا گھوڑی چڑھیا نیسیو گھوڑی چڑھیا ویل چودھری شریف دنا دی ویل. کیا کر رہے یار، کوئی اچھا امپریشن ڈالے. دو تیناری میں سمجھایا ہے. میں کہا پتر تو پھوپھو نال نہیں پھرندے یا میں ملکہ وانگ لینڈ دی اگوان جا کوئی گال نہیں ماں جی ایسی توڑے پتر ہی ہیں. یور میجسٹی کیا نائے ساتھ والی کنٹری سے آپ کے نام ایس ایم ایس آیا ہے. کیا دینے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی پچھلی 2 کمیٹیاں شارٹ ہیں. اے اترا چارلس بیشت کرا ہوں دے منو. نہیں تو کیوں آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے؟ آہو پتر اگو ہیری دا ویاہ نہیں کرنا. ہاں میں کمیٹی پا چھڑنی ہوں منڈے آپ بھی کار گھر لیندے نے ویاہ. پر میں آنیا کہ کوئی سست نکلیا تو پھر اسی تھی اپنی تیاری پھڑیے. ہیری دا ویاہ گال سنو وے بینڈ اپنا ہی لے کے آنا نیو باؤ بینڈ. اوکے لاہور شہر تو جنج چڑی تے تار پشوروں کھڑکے کراچی تک دل تڑکے کراچی تک دل تڑکے لاہور شہر دیکھ لو ابھی جا اماں ویلا ہونی ہے اوترے ویلا ہون نہیں ہون تے مالکان دی بھی نہیں سون دے. پتر لاہور شہر تو جنج چڑی کی ہویا کچھ ساڈا انگریزی گانا سناؤ. اوکے ٹم پا پم پا پم پا پم پا پم پا پم ٹم پا پم پا پم پا پم. رہن دے اتریا تیرے سپیلنگ نہیں ٹھیک. وجہ سے مجھے ابھی تک یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا کہ اتنے نحیف اور کمزور گارڈ کو رکھا کیوں ہے آخر آپ نے؟ پتر کمزور نہیں ہے بڑا تیج ہے. راج میری بگی جان دئی ہوئے نا تے تھے تے تاراں شاراں بھی بڑیاں نیویاں نے. پھر اے والا گارڈ انہوں لتاں تو پھڑ کے تاراں اونچیاں کر دے. اینو تے میں جاندی انگلینڈ لے جانا ہے. اوتھے محلے چ پھردا ٹردا رہے گا تے اندر چوہے نہیں آن گے. فلپو بڑا ڈر جائے چوہیاں کولو. میں نہیں ڈر دی. میرے سامنے تے سپ آ جائے تے میں انہوں پوچھل تو پھڑ کے آنی ہیں پتر کدھر کما کے مارنیاں میں کاندے چتے آئے اللہ جی میں مار گیا. سچی مچی مار جاندے. ملکہ اس حوالے سے تو شہرت رکھتی ہیں کہ ڈرتی ورتی بالکل نہیں. ملکہ 2003 میں سعودی ولی عہد شاہ عبداللہ برطانیہ کے دورے پہ گئے تھے تو ملکہ نے ان کو اپنی جاگیر کی سیر کروائی تھی اور گاڑی خود چلا رہی تھی. گاڑی اتنی تیز رفتاری سے چلا رہی تھی کہ 80 سال کے اس تو 80 سال سے زیادہ عمر تھی
शाह अब्दुल्ला की, उनकी जान निकल गई बैठे बैठे और ये बातें करती जा रही थी। उन्होंने कहा कि बातों पे ध्यान ना रखें, सड़क पे ध्यान रखें। बड़ा डरिया सी ओ मुंडा अब्दुल्ला, कहंदा मैं ऊंट ते बैठा नहीं डरदा, तुहाडी गड्डी च डर गया वां। मैं ते गड्डी दी स्क्रीचां भी मारनियां। फिलिपो भी कहंदा हुंदा है ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। इतनी तेज गाड़ी चलाती थी तो मलका का चालान नहीं होता था? अगर कोई मलका का चालान करना भी चाहे तो कैसे करता? ना मलका के पास आईडी कार्ड, ना पासपोर्ट, ना ड्राइविंग लाइसेंस, और ना मलका की गाड़ी पे नंबर प्लेट। पासपोर्ट भी नहीं मलका? ना पुत्र मेरे लिए ते पूरी दुनिया छटापू ही है। छाल मार के कदी उस खाने च ते छाल मार के कदी उस खाने च। फिर इंग्लैंड पहुंच के ठीकरी चुम के पीछे। ਮਲਕਾ ਜੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਿਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦ ਕਢਾਉਂਦੇ ਮਾਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਫੜ ਕੇ ਔਤਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਮ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सारे बड़ा प्यार करते ने मेरे नाल। हम मलका अपने प्रोग्राम में आपकी मौजूदगी में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि दूसरी जंग अजीम में आपने जो बरतानवी फौज में खिदमात अंजाम दी थी तो कार ड्राइवर और कार मैकेनिक के तौर पे काम किया। मैं ते सवेरे अपनी गड्डी दा तेल पानी रोज आप चेक करनी है। बोनट चौक के विच इदा को लगा नहीं हुंदा, इंज करके खिंच के टाकी नाल छाप करके फिर बेच, फिर इंज करके छाप करके फिर बेच, फिर काट के दे चेक करनी है कितना तेल है। जी जी जी, ये भी मलका की शायरी है, गड्डी तू मंगा तेल मैं पवानी है। ये मेजेस्टी अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी जिंदगी के जो मुख्तलिफ अदवार हैं वो बड़े खूबसूरती से किसी ने कैप्चर किए, अगर आप इजाजत दें। बहाओ जरा मेरी भी रूह राजी होवे। ये देखें मां तज के जाए मैं स्कूले टुर गई कालजे गई। ये आप हैं? लाहौर कतरीना कैफे सदके जावा ब्याह हो गया उन मेरा। चालस आ गया। वाह जी वाह, जबरदस्त। हाय 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 की याद करा दिता जी। क्या क्या बात है। हाय कपड़े सारे अपने मलका? अपनी ने पुत्र और मैनू चैनल वाले फोन दे पुत्र मैं ते कपड़ियां दी इन्नी शकीन सा मैं अपना दर्जी रखे आसी। अच्छा हर महीने मैनू नवा सूट सी के देंदा सी। ते फिर फिलिपू आया ते ओने कहा छाडल जबो उथों बाजारों रेडीमेड ले आवां कनांदे एवें कद लई गैर दर्जी घर च वाड़े। फिर मैं कद छड़िया। फिलिपू ते मेरा इन्ना ख्याल रखदा जो मुंह कढनियां पूरी कर दिंदा गल। अच्छा एक दिन इन्ना जरूरी काम बह के पिया करदा ही मैं भी बैठी सा। आके नौकर ने कहा है मलका लिया रोटी खुल गई जे। रोटी खोल गई? लो सरकार असी लंगर करके आए जे। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आपको कहां से निकाला गया जी? सऊदी अरब से। चलो अब रोने वाली कौन सी बात है, उन्होंने आराम से निकाला, उन्होंने कौन सा पीछे से किक भी मारी होगी। आपको कहां से निकाला जी? कुवैत। लो जी दोनों को ही निकाल दिया, बेचारे मजदूरी करने उधर गए थे, काम काज करने, तो दोनों को निकाल दिया। बड़ा दचका लगा भाईजान, बड़ा दचका अल्लाह लगा। खैर। अजीज यहाँ से भी निकाल दो इन दोनों को। नहीं यार हम कौन सा वीजा चेक करके बिठाते हैं, कोई बात नहीं। तो हुआ क्या था ये भाईजान बताओ। 2 भैंसे बेच के और 2 कट्टे और अपनी बीवी का जेवर बेच के सऊदी अरब गया हूँ। अच्छा वो अरबाब कहता है तुझे तो कोई काम नहीं आता कस्सी चलाने के अलावा। मैंने कहा भाईजान मैं कंप्यूटर खोल के बंद कर देता हूँ, फ्रिज से बोतल निकाल के फ्रिज को बंद कर देता हूँ, टूटी चल रही हो बंद कर देता हूँ, और दरवाजे पे कोई बंदा आ जाए उसको अंदर ला के वो दरवाजा भी बंद कर देता भाई हूँ। अभी तो मुंह बंद रखता ना तुझे वो ना निकालते। हर चीज बंद कर लेते हो, अपना मुंह बंद करते तो आज ये नौबत ना आती।
نہیں یہ جو تم نے اپنا ٹیلنٹ سنایا ہے تمہیں خود جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ جو مجھ اور کٹے تم نے بیچے ہیں ان میں سے ایک کٹے کو ہی بیچ دیتے, یہ کام تو وہ بھی کر لیتا. ان کا جو پرابلم ہے وہ بہت حد تک جائز بھی لگتا ہے, لیکن میرا خیال یہ بات بھی اپنی جگہ بجا ہے کہ یہ جس کام کے لیے گئے تھے وہ کام ان کو بنیادی طور پہ آتا نہیں تھا, یا جو کام ان کو آتا تھا اب عرب ملکوں میں اس کام کی اہمیت نہیں ہے, ضرورت نہیں رہی, اس لیے انہوں نے نکال دیے, اور آنے والے دنوں میں بڑی تعداد میں پاکستانی مزید نکالے جائیں گے. اور صحیح بات ہے, ایک تو پہلے یہاں سے جو انہوں نے ٹیلنٹ مانگا ہے, جو ان کو چاہیے سکل, ہاں جی. اس کے مطابق ہی جانا چاہیے. واقعی ادھر سے بہت سارے لوگ ہمارے جھوٹ بول کے بھی ہمیں جھوٹے سچے سرٹیفکیٹ لے کے بھی چلے جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو اب بندہ نہیں چاہیے تو وہ نکال رہے ہیں, تو بھائی یہ ان کا حق ہے, آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن دوسری طرف ہمارے بھی تو کچھ فرائض بنتے ہیں نا, جو وہ اب دیکھو کہ اگر عرب دنیا میں ہمیں مین پاور اپنی کھپانی ہے تو اس کے لیے کچھ ہمیں بھی تو کرنا چاہیے نا, حکومت کو بھی کچھ کرنا چاہیے. کہ یہ تو حکومت نے ایک سبق یاد کر لیا ہے اور مال روڈ پہ بینرز بھی لگا دیے ہیں شہباز شریف اور نواز شریف کی تصویروں والے کہ اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ ہمیں اسکلڈ لیبر کی ڈائمنشن سمجھ لینی چاہیے کہ جس کو آج سے 15-20 سال پہلے ہم اسکلڈ لیبر کہتے تھے وہ بھی شاید اب اسکلڈ نہیں رہی عرب دنیا میں. ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, اس کی ڈائمنشنز فرق ہے. اب ہمیں آج سے 10-15 سال پہلے جہاں پہ سٹیل فکسر کو آسانی سے جاب مل جاتی تھی, عام لیبر کو مل جاتی تھی, اب مشینری نے بڑی تیزی سے ریپلیس کر دی ہے. اب وہاں پہ کمپیوٹر آپریٹرز کی ضرورت ہے, آپ کو سافٹ ویئر انجینئرز کی ضرورت ہے, اور اگر آپ نے لیبر میں جانا ہے تو وہاں پہ ہیوی مشینری سے آشنا ہی ضروری ہے. اس کے قریب سے بھی نہیں ہم گزرے ہوئے, اور ہمارے ہاں جو اسکل سکھاتے ہیں ان اداروں کا بھی کوئی تعلق نہیں. وہ بلکہ ذرا سی آپ ریسرچ کرو تو پتا چلتا ہے کہ پاکستان میں جتنے اسکلڈ لیبر پیدا کرنے والے ادارے ہیں, موسٹ آف دیم انہوں نے 3 مہینے کے کورس کو کھینچ کے 2 سال کیا ہوا ہے. ہاں جی, یہ ٹیبٹا شیبٹا یہ وہ جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں تو زیادہ تر یہ تصویریں ہی اتروا رہے ہیں. اچھا ایک اور بات, یہ جو سکل یہ سکھانے والے یا سکل دینے والے ادارے ہیں, اس میں عام طور پر میٹرک کے بعد داخلہ ملتا ہے, ٹھیک ہے. اس وقت طالب علم کی عمر ہوتی ہے 15-16 سال. جب وہ 2 سال کا کورس کرتا ہے تو وہ 17 یا 18 سال کا ہو جاتا ہے. 21 سال سے پہلے سعودی عرب میں کوئی داخل نہیں ہونے دیتے, وہ اس کے لیے بنیادی شرط ہے, ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اگلے 3 سال میں وہ اپنا جو سیکھا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے. اگر اس نے کوئی اور کام سیکھا, ویلڈنگ کا کام سیکھا ہوا ہے جو کہ ویسے بھی متروک ہو چکا ہے, کم ہو چکا ہے یا بدل چکا ہے, تو وہ 3 سالوں میں اس نے کھیتی باڑی شروع کر دی ہوتی ہے. دوبارہ جب وہ مطلب اس کی عمر ہوتی ہے سعودی عرب جانے کی, وہ اپنا بنیادی کام بھول چکا ہوتا ہے. ہاں جی, ویلڈنگ اس نے 2 سال پہلے سیکھی ہوتی ہے, 2 سال وہ بیچارہ کھیتی باڑی کرتا رہتا ہے. جب ادھر پہنچتا تو کہتا بھائی جی اور میں نے کچھ نہیں ویلڈنگ کرنا تھا, میرے کو لوگ گنے ویلڈ کرا لو. چلیں جنید بھائی, کویت والوں تو نکال دیا, میں اپنے محلے میں الیکٹریشن کی دکان پہ بھی گیا ہوں کہ کوئی کام دو, تو وہ بولتے ہیں اور جا بہو تو کویتوں آیا تیرے یہاں سے کوئی کام بنے ہے. میں نے تو گریس بھی لگائی ہے کہ بھائی میں پورا الیکٹریشن ہوں, مجھے کوئی کام دو. کہندے نے نہیں بہو جی تسی کویتی ہو, تہاڈے کول تے انج دینار نے, تسی جاؤ. اب کویت کی مثال تم دیکھو نا, حکومتوں کا رول کیا ہوتا ہے کہ کویت میں 2012 میں کویت میں ہندوستانیوں کی تعداد صرف 2 لاکھ تھی, جو آج 10 لاکھ ہو گئی ہے. 8 لاکھ کا اضافہ کیا ہے وہاں پہ ہندوستانی حکومت نے, جبکہ 2012 میں پاکستانیوں کی تعداد 1.5 لاکھ تھی, جو آج پتہ کتنی ہو گئی ہے, کم ہو کے 1 لاکھ ہو گئی ہے. شاباش. نہیں تو یہ واقعی اب تو ہمارے ملک کے اندر بھی جو لوگ ہیں نا جی, یہ اس ڈپارٹمنٹ کے, وہ کوئی دلچسپی نہیں لیتے, نہ ہی کوئی باہر کی حکومتوں کے ساتھ, دوسرے ملکوں کی حکومتوں کے ساتھ کوئی مذاکرات کرتے ہیں. وہ اپنی سکل کھپانے کے لیے ان کے کوئی ایسی میٹنگیں کرتے ہیں, کوئی رہ ہی نہیں گیا ہوا ایسا کام. یہ تو اب لوگ بیچارے خود ہی کھجل کھجل ہو کے ادھر جاتے ہیں اور خود ہی تکے تکے کھا کے واپس آ جاتے ہیں. ہندوستان کو جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہندوستان نے اپنے سکلڈ ورکر وہاں پہ بھر دیے ہیں عرب دنیا میں, اور دوسری طرف ہم خار ہو رہے ہیں, ہمارے ریمیٹنسز میں کمی واقع ہو رہی ہے. صرف سعودی عرب سے جو زر مبادلہ آتا تھا اس میں پہلے 8 مہینے کے دوران اس سال کے 5.6% کمی واقع ہوئی ہے, جبکہ ہندوستان جو ہے وہ دھڑا دھڑ وہاں پہ زر مبادلہ کما رہا ہے, اپنے بندے کما رہے ہیں. لیکن اس کی وجہ ہے
पिछले 1 साल के दौरान उनका बजट देखो, लोगों को स्किल्ड वर्कर बनाने के लिए 40 अरब रुपए का बजट रखा था हिंदुस्तान ने, 40 बिलियन रुपीस। और उसके बाद उन्होंने किया क्या? उन्होंने यूनिवर्सिटीज में, हिंदुस्तान में उन्होंने अरबी के डिपार्टमेंट बना दिए। आज से 10-12 साल पहले आपको किसी यूनिवर्सिटी में, हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटी में अरबी के डिपार्टमेंट नजर नहीं आते थे। उन्होंने कोई मुसलमानों से इज़हार हमदर्दी नहीं किया, अरब दुनिया से उनको कोई प्यार नहीं हो गया, उनको रोजगार से प्यार है, उनको पैसे से प्यार है। जाहिर है जिसको साथ स्किल के साथ साथ उनकी लैंग्वेज भी आती है, कल्चर आता है, मुबालक में उनको प्रेफरेंस देंगे। नहीं, यहाँ पे तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि ये टेमटा और एक दो और जो डिपार्टमेंट है इस काम के लिए, आप देखें कि हर दूसरे दिन उनकी कोई ना कोई हमें फोटो शोटो लगी होती है। चेयरमैन साहब की फोटो लग गई जी, संदे तकसीम कर रहे हैं, मयाकरात कर रहे हैं, दाखिले कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। भाई काम कर रहे हैं उसमें फोटो वाली तो बात होनी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो काम कर रहे हैं ना उसकी फोटो नहीं आनी चाहिए। जो फोटो खिंचवा के लगवा रहे हैं इसका मतलब है वो काम नहीं कर रहा है, वो बेचारा सिर्फ अपनी मशहूरी चाहता है। और बाबू अब हमारा बनेगा क्या? भाई अगर जाना चाहते हो वापस तो कोई स्किल सीखो, या अपने बच्चों को कुछ स्किल सिखाओ। क्या कह रहे? हुनर सीखो, हुनर। अच्छा, और वो भी जदीद हुनर सीखो। हुनर भी मर्दा वाला सीखी, किधरे स्वेटर उड़ना सीख ले। सीधी बात है, सऊदी अरब में ये जो सऊदी विजन 230 है उन्होंने बिल्कुल बदल के रखते हैं ना, उनको जरूरत नहीं है मिट्टी उठाने वाले मजदूरों की, मशीनरी ने रिप्लेस। जाहिर है जी उधर अब बुर्ज खलीफा बन गया और हमारे बंदे अभी भी बेलचा चलाने को स्किल समझते हैं। और वैसे भी भाजन है तो उनका बेचारों का भी तेल थल्ले चला गया। अब उनको अब वो दूसरे काम ढूंढ रहे हैं, फैक्ट्रियां लगानी चाहते हैं, हुनरमंद लोग चाहते हैं। सही। और हमें भी अगर उधर जाना है तो फिर वाकई को पक्का आजकल का जो उनको चाहिए, जो उनकी डिमांड है वो हुनर सीखना चाहिए। और चलो भाई जी जो होना था हो गया, आप इधर ही कोई काम बता दे। ओ यार बड़े काम इधर, आराम से गुड्डी डोर बनाओ, अगले हफ्ते पकड़े जाओगे तुम। मौजा ही मौजा। चलो आपका तो मसला हल हो गया ना। भाई जी तुसी कुवैत इलाज कराओगे इस? क्यों जी तुसी मेरे हाथ से एक्सरे देख लेने? यार इलाज कराने नहीं था गया, इतने छोटे मुंह की ऐनक सिर्फ कुवैत से मिलती है। ये जो आजकल एक बड़ी खबर सर्कुलेट कर रही है ना कि पिछले 4 माह के दौरान 40,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब से बेदखल कर दिए गए। हमारा जो सऊदी सफारत खाना है वो तो इस फिगर को डिनाई करता है, लेकिन ये रिपोर्ट जो है किसी आम अखबार की नहीं, सऊदी अखबार, सऊदी गजट की है। इसको डिनाई करना आसान नहीं है। निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, उनकी अपनी वजूहत भी हैं, वो सारे नॉन स्किल्ड होने की वजह से नहीं निकाले, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की वजह से भी निकालने हैं बंदे, लेकिन बहरहाल निकालने। जी जी नाज़रीन, हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, तुम्हें भी परिंदों के हवाले से काफी मालूमात है और शौक भी है परिंदे पालने का। मुझे एक परिंदों का माहिर बता रहा था कि ये परिंदे जो हैं इनमें भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं। मैंने कहा जी क्या मतलब? कहता है ये जो कौवे होते हैं ये परिंदों की पुलिस है। और बता रहा था ये जो चीलें होती हैं ये कारपोरेशन का महकमा होता है। हाँ जी, हाँ जी, कचरा शचरा इनके ये में होता है और दूसरी चीजें। और बता रहा था कि ये जो उल्लू होते हैं ये पटवारी होते हैं। हाँ जी, ये कब्जे भी करा देते हैं प्लाटों। और मैं हैरान हो गया सुन के, कहता भाई जी ये तो आपको पता ही है कि जो कबूतर है ये डाक का महकमा होता है, ये जो तोते होते हैं ना ये जर्नलिस्ट होते हैं। इनमें से फिर जो अच्छे तोते होते हैं वो एंकर भी लग जाते हैं। हस्बे हाल का एंकर कोयल होता है। सिर्फ आवाज के चक्कर में कोयल बन रहा है, काली होती है कोयल और आवाज भी जनाना है वो। और बता रहा था कि जो दानिश्वर बैठते हैं ना मुख्तलिफ प्रोग्रामों में वो मोर होते हैं। गिद्ध के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि उनका सियासत से क्या ताल्लुक होता है। दस यार की बात किधर को लेकर जा रहे हो तुम? हद हो गई तुम्हारे वाली। हाँ अलबत्ता जो ब्यूरोक्रेट होते हैं ना ये अकाब होते हैं, इनको दूर से शिकार नजर आ जाता है, डाई मार के शिकार लेके निकल जाते। तुम्हें परिंदों के बारे में इतना ही पता है, उस परिंदे का नाम बताओ जिसके सर पर पैर होते हैं। आसिफ अली यरदारी जब मर्जी सर पे पांव रख के दौड़ जाती है। यार हर परिंदा सर पर पैर तीनों चीजें होती हैं। हाँ जी। अच्छा जी, आप खबर भी सुन लें।
पीरू के नजूमियों ने 2017 को दुनिया के लिए खतरनाक करार दे दिया। नजूमियों का दावा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इस साल जंगों में मजीद तेजी होगी। क्यों जी? पहले 35 डॉक्टरों ने इसे पागल कह दिया था, अब नजूमियों ने इसे मनूस भी कह दिया। एवं नहीं मुजारे हो रहे अमेरिका में। अमेरिका के लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, सबको तो अंग्रेजी आती है। हाँ जी, बहुत अक्लमंद लोग हैं। अजीज ने सुना अमेरिका में जो स्कूल नहीं जाता वो भी अंग्रेजी फर बोलता है। जी जी गौरी साहब, वो चमांदरी पढ़े लिखे लोग हैं। अंग्रेजी के तो वो इतने पक्के होते हैं, उनको गोली भी मारते तो मरते हुए भी वो अंग्रेजी बोलते हैं। ओह माय गॉड, व्हाट इज की मरने से बिल्कुल पहले आखिरी लम्हे फिर अंदर की पंजाबी बाहर आ जाती की ताई। और यार नहीं, जिसको मैंने फिल्म में मरते हुए देखा था उसने तो अंग्रेजी में ही कहा था, मुझे नहीं आती इसलिए मैंने पंजाबी में कह दी। अच्छा जी सुने, शादी की तकरीब के लम्हात को यादगार बनाने के लिए थाईलैंड में 20 जोड़ों ने समुंदर की लहरों में शादी करके सबको हैरान कर दिया। शादी के 3-4 महीने बाद भी तो यही होना है। नहीं भाई जी, इन्होंने लम्हात यादगार नहीं बनाए, इन्होंने खर्चा बचाया है। हाँ हाँ, देखो ना जरा, शादी हाल का खर्चा उन्होंने बचा लिया, खाने का खर्चा उन्होंने बचा लिया, वाजियों वालों को जो पैसे देने थे वो भी गए। बाजे वाले पालो बेचारा रौला पैंदा रहंदा। बजा लवो भाई जी, फिर वाजियों च पानी पै गया तो सानू ना कहना। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਂਦਾ ਵਿੱਚ। चलो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी। और सर जी वाजे तो वाज जाएंगे, पर वो किस तरह होंगे? वो तो बुलबुले पानी के निकलेंगे। या बरादरी पूरी कहेगी गिल्ली शादी कर ली। अब मैं सही कह रहा हूँ, खर्चा बचाया इन्होंने। देखो ना जरा, ना किधरे मेहंदी लगी, ना को भांड आए, ना देगे करड़ू हुई। वन डिश थी, वन डिश, सिर्फ मछली पकी थी। मछलियां तो बेचारी मेहंदी के गाने गा रही थी तो फंस गई उधर आए। गाना उन्होंने आगे सिर्फ मेहंदी तो नाल ही उन्होंने कुंडी बाहर खींची, मेहंदी वाली कुड़ियां सारियां उन्होंने तल लिया। अच्छा जी, ये खबर सुने जरा। भारतीय रियासत हरियाणा के दारुल हुकूमत चंडीगढ़ का दोनों टांगों से माजूर भिखारी लड़की भगा कर ले गया। दोनों टांगों से मजूर है तो वो भगा कर तो नहीं, वो तो कसीट के ही लेके गया होगा। कैसा शोखा आदमी, अल्लाह माफ करे। देखो, दोनों टांगों से मजूर है, लड़की दौड़ा के ले गया और बेचारा पहले चौक में ही फड़िया गया होगा। टांगों की वजह से नहीं, अपनी आदत की वजह से। हाँ जी, पहले चौक में ही मांगना शुरू कर देना। ए सखिया, अल्लाह तेरी खैर करे, ए 100 रुपया दे दे, लत्ता तो मजूर है, कुड़ी नू रक्शे च लैके दौड़ना है। बस पास जो चौक में सिपाही खड़ा था उसने पकड़ लिया, उसने कहा लड़की को दौड़ाना है इसने। और मुझे यकीन है कि ये दौड़ा के नहीं लेके गया, लड़की खुद दौड़ी है। उसको बेचारी को पता नहीं था कि ये दोनों टांगों से मजूर है, वो घर से तो निकल आई। उसने फिर जब देखा कि है तो जमीन तो उठने नहीं दे, उसने फिर कहा कि हुण मैं ते आ गई, हुण मैनू दौड़ा। ओह माय गॉड, ये फिक्रा तो मुझे करीना ने कहा था। क्या? कि गौरी मुझे दौड़ाओ। गौरी बिल्कुल ठीक कह रहा है। असल में गौरी खोती रेडी चलाता था, इसने अपनी खोती का नाम करीना रखा हुआ था। वो खोती कह रही थी, गौरी मुझे दौड़ाओ। बहुत बुरी बात है सैफ अली गौरी, बहुत बुरी बात है। अच्छा जी अजीज साहब सुने जरा, हिटलर का टेलीफोन अमेरिका में 2.5 करोड़ का बिक गया। हिटलर का जी 2.5 करोड़ का खरीद लिया किसी ने। ये तस्वीर भी देखो जरा फोन की। शाबाश। टेलीफोन कम और पुराने वक्तों की जीटीएस की बस ज्यादा लग रही। याद है? बल्ले बल्ले बल्ले, देखो 2.5 करोड़ का जिसने खरीदा ना, मेरा ख्याल है उसके येन में ये होगा कि शायद इस पे हिटलर का फोन आए और मैं उससे पूछ लूं जो चीजें तारीख में नहीं मौजूद, फिर मैं किताब छाप के तो फिर कहूं कि हिटलर की अपनी ज़बानी हिटलर की कहानी। या मैं और दिल करे हिटलर का फोन ना आए, उसके दुश्मनों का आ जाए कि कितने भी हो तू। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस फोन के रिसीवर पे भी छोटी सी मूछें लगी होगी। वैसे जुनेद साहब, फोन की शक्ल देखकर यही लग रहा है कि इत्ते कोई खैर दी खबर नहीं आई होनी। इत्ते यही गुफ्तगू ही होनी, और फड़ ले नू, चुक ले नू, और लम्बे पा ले नू, और फड़ नू, और चुक नू, और सट नू, और ले आओ नू। हेलो, ओए मैं टबर खाने दे
ਕਾਰ ਨਾ ਮਾਰਾਂ ਓਏ ਫੜ ਲੋ ਓਏ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ ਹੈਲੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੜਨ ਕਗੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਓਏ ਸਮੁੰਦਰ ਛੋੜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਲਾਓ इस फोन पे बड़ा फोन खराबा हुआ होगा। इंडिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हजूर चिट्ठियां आपके नाम हस्बे डाक, मेरे नाम अकेले के यार, तुम्हारे नाम नहीं है? चीजें वाली तुम्हारे नाम होती है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। पहली व्हाट्सएप चिट्ठी है जी। अस्सलाम वालेकुम, हस्बयाल की पूरी टीम को मियां दानिश की तरफ से प्यार भरा सलाम। वालेकुम अजीज सर और जुनेद सर, मैं हांगकांग से बोल रहा हूँ। जो लाहौर में जो फाइनल हो रहा है PSL का, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे फाइनल का टिकट लेके दें। अगर मुझे टिकट ना मिला तो सर मैं धरना दूंगा। धमकी सुनी है? PSL के फाइनल की टिकट लेके देंगे, टिकट ना मिला तो मैं धरना दूंगा। हाँ, तो ले दे। कैसे ले दूं? सेठी साहब ने कहा कि मैं खुद भी टिकट खरीद के जाऊंगा स्टेडियम। नहीं तो वो भी पैसे देंगे, वो को मुफ्त नहीं कह रहे मुझे टिकट ले दे, मोल ले दे। वो यार हांगकांग में रहते हैं, उधर वो मंजी पीढ़ी भी ठोकते हुए, तो उनके पास काफी पैसे होंगे। तो मुफ्त उन्होंने किस लिए लेना है टिकट? मैंने कहा पैसे जरा ज्यादा भेजे, टिकटें हमने भी लेनी है। अच्छा, अपने पैसे भी इन्होंने को मंगाइए। लै जी तुसी फस गए हो भाई जी धरने दे चक्कर च। जिस तरह इमरान खान नहीं फस गया बेचारा, हुण तुसी भाई जी सबके पैसे भेजो और इकट्ठी टिकटें खरीदते हैं। बल्कि बीच में लंच और डिनर के पैसे भी भेजे। यार ज्यादा लोड ना डालो टिकटों के, उन्होंने हाँ कर दिया, बस ठीक है। भेजे फिर दानिश साहब इंशाल्लाह टिकटें इकट्ठी ले लेते। मियां साहब ने अपना फोन नंबर भी साथ भेजा है। इस गुफ्तगू के बाद अगर उनको फोन करेंगे तो एक ही जवाब आता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। अच्छा जी, खत है हवेली लखा से मोहम्मद आशिक बट्टू लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम। चिट्ठी आई है मेरे शहर से आई है। हाँ। यार हवेली लखा से आई है, हवेली जिसे लखा कब्र उकाड़ा में है। यार इसने तो उकाड़ा पूरे पंजाब में खिला दिया। यार हवेली लखा मंजूर वट्टू साहब का कस्बा है भाई। आहो, तो उकाड़ा कहाँ से आ गया? उकाड़ा के कपड़े ने जड़े इन्हें खिल रहे हैं। अपनी दवा तुम डॉक्टर कदीर और अब्दुल सत्तार साहब को भी गुजरांवाला में ठोक देते हो। और नहीं यार, मैंने किस लिए उन दोनों को कहना, उन दोनों की उर्दू इतनी अच्छी है कि गुजराने के मैं कह ही नहीं सकता। अच्छा, खत तो सुनिए। कहते हैं, अजीजी साहब और जुनेद साहब, मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ। मैं अजीजी साहब से एक मशवरा लेना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं, दानिश्वरों से लोग ऐसा पूछ, देखो ना ये शायद मशवरा ही लेते हैं दानिशवरों से, कोई सालन तो लेता नहीं। ये देखो शर्मिंदा हो जूतों की बजाय कि तुम्हारे उकाड़े का और मशवरा मुझसे सुन तो लो, सुन तो लो यार। अच्छा सुने, कह रहे हैं दे कि दो मेरी मशवरा, मेरी जरूरत पड़ेगी। देख लेते हैं ना यार, अगर मशवरा तगड़ा हुआ तो हाथ पवा देना। अच्छा, कह रहे हैं कि मेरी 2 बैलों वाली बैल गाड़ी है और मेरा एक बैल अल्लाह को प्यारा हो गया है। कहते हैं कि 2 महीने हो गए हैं, बैल ढूंढ रहा हूँ, कोई अच्छी नस्ल का नहीं मिल रहा है। और कहते हैं कि अजीज साहब, आप भी शक्लो सूरत और कद काट से बैल ही लगते हैं। यार एक मिनट ठहर तो जाओ, उसकी बात तो पूरी सुन लो। क्या है? मैं नहीं हथ पा रहा। क्या है? वो कहते हैं कि अजीज साहब, आप भी कद काट और शक्लो सूरत से जमींदार लगते हैं। अच्छा, जिम्मेदार लगते हैं जी। अच्छा अच्छा। और वो कह रहे हैं कि मेहरबानी करके बताएं कि अच्छा बैल किस अच्छे इलाके से मिलेगा। क्या नाम है भाई साहब का? आशिक वट्टू। अच्छा, आशिक वट्टू साहब, आप ऐसे करें हजूर, आप अपने ससुर साहब से मशवरा करें। मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी तो देखो ना अच्छा बैल ढूंढ ही लिया है। ये तो तुम पर्सनल हो गए यार। क्या भाई, मैं पर्सनल हो रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है? यार उन्होंने बैल लेने। भाई उन्होंने बैल नहीं लेना, उन्होंने जो लेना था ना वो ले लिया है। क्या? चेजा। अच्छा जी, खत है क्लिफ्टन कराची से अल्ताफ चाचड़ लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम साहब। अजीजी साहब, सर्दियों ने तो इस दफा कमाल ही कर दिया है। इतनी जल्दी गुजर गई हैं जितनी जल्दी लोड शेडिंग में लाइट चली जाती है।
अभी तो रजाइयों और कंबलों से फिनाइल की खुशबू भी नहीं गई थी कि गर्मी ने आन दबोचा है। इतनी जल्दी मौसम में तब्दीली की क्या वजूहात हो सकती हैं, इस पर जरा अपनी माहिराना राय से हमें नवाजें, बड़ी मेहरबानी। भाई जी फरवरी आ गया, तुसी मेरा ख्याल है कंबल से ज्यादा फरनैल छिड़क बैठे। यही होता है हर साल, फरवरी जाने वाला है, अब गर्मी शुरू हो गई है, रात को बड़ी ठंड होती है। सवेरे भी जो अक्लमंद लोग हैं वो छोटा मोटा स्वेटर पहन के ही निकल रहे हैं, और मार्च आके शुरू हो रहा है तो मार्च में जाहिर है गर्मी शुरू हो ही जाती है। आप क्या चाह क्या रहे हैं? आपका कोई एसी खराब है, या हाथला पखा गुआच गया आपका, या आपके पेडिस्टल फैन ने घूमने से इनकार कर दिया है, या कंबल को महंगे ले बैठे हैं। आप कोई डिटेल लिख के भेजें हमें, या फिर इस तरह करें कि नई फरनैल की खुशबू गई कमलों में से तो उनको धो ले, क्योंकि गर्मियां तो अब आ गई। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जी क्या लेके आए जी आज? दियो जी 50,000 रुपये कट के दियो। 50 रुपए देने क्या एंकर जेरे तामीर है? ओ भाई जी असि लैन आए हैं, तुसी उल्टा पूछन दे हो कि क्या लेके आए। मेरा मतलब है कि क्या सुनाएंगे आज? जी ये कहे ना 1 2 3 4। गोलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, में रंग भरे बादलों बहार चले, खुदा के आसरे इस मुल्क की सरकार चले। बल्ले बल्ले हो बल्ले बल्ले ए रोज हड़ताल कर दे, बल्ले बल्ले भाई रोज हड़ताल कर दे, बल्ले बल्ले भाई रोज हड़ताल कर दे, बल्ले बल्ले भाई रोज हड़ताल कर दे, यंग डॉक्टरां दा शौक पुराना ए रोज हड़ताल कर दे, रोज हड़ताल कर दे, रोज हड़ताल कर दे। संडे मंडे गरमंडे संडे मंडे गरमंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे संडे मंडे गरमंडे संडे मंडे गरमंडे संडे मंडे फूलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, में रंग भरे बादलों बहार चले, गुलों में रंग भरे तो फिर मटके कौन भरे? क्या कहने? सही गाले वंड के कर लवो सारे मेरे मगर ही न लग जावो। आगे हड़ताल में पीछे हो जाओ, परे परे परे, गुलों में रंग भरे, फूलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। यहाँ पे सिर्फ रिश्वत है जो बार बार चले। बार बार चले रिश्वत यहाँ बार बार बार, ओ बल्ले बल्ले के सड़काते मल मार के, बल्ले बल्ले भाई साढ़े काते माले मार के, सारी ट्रैफिक नू पान से पाए सड़का दे। माले मार के, बल्ले बल्ले फूलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। ये वो शख्स है जिसका मोहल्ले में उधार चले। मैं भाई अपनी कली कवाली कर लांगा। मैं चले बैठिए, उठ यार शिबली। शिवली बैठा रहो रोटी आना लिए। ओ बल्ले बल्ले कलासा विच ए सिख दे, बल्ले बल्ले कलासा विच ए सिख दे, केड़ा केड़ी केड़ी सड़क ते भरन कलासा विच ए सिख दे। कलासा विच की सिख दे, क्यों सिख दे, की सिख दे, क्यों
क्यों सिखते की सिखते क्यों सिखते की सिखते यार ਇਹ ਹਮੇ ਆਖਾਉਣ ਡਿਆ ਦੱਸਣ ਤੇ ਡੇ ਕੀ ਸਕਦੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤੇ ਥਰ ਲਗਾ ਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਏ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਏ ਸਾਬਣਨਾ ਸੇ ਆਸ ਆਣੇ ਬਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਏ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਮੁਕੱਦਸ ਪੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਈ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਏ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 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 ਨਹੀਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੋਈ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੋਈਏ ਕੋਈ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਵਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਵਾਂ दो चोरी के पर्चे हुए हैं इस पे ये कैसे कहता है कि मैं सच्चा हूं? ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਏ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਵਾਂ फूलों में रंग भरे बादलों बाहर चले ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਵਾੜ ਚੱਲੇ बल्ले ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣ बल्ले बल्ले मरीज बैठे सोचते रवण ਨਾ ਲੜਨਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਮਰਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣ मरीज बैठे सोचते रवण ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਮਰੀਜ਼ ਓਏ ਬੈਠੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰੋਜ਼ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ साल विच दिन नहीं ਓਏ ਰੋਜ਼ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਓਏ ਲਾਇਆ ਹੜਤਾਲ ਮਾਰਦੀ ਓਏ ਰੋਜ਼ ਹੜਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ੀ